Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture and science lecture of grade 4. As you can see here, today we are going to discuss our science lecture of grade 4, and we are discussing chapter number 7, and the name of our chapter is Animals Living and Surviving. This we have already discussed. Animals living and surviving. This chapter we have already started here, beta, and in that previous video I have already told you about animals and about their livings, and then I told you that first of all we divide animals into mainly two parts, and they are vertebrates and invertebrates, and after that I have explained to you that those who were having backbones are called vertebrates, those who were not having backbones are called invertebrates. Then further we divide vertebrates into 5 groups: reptiles, then amphibians, then birds, then fish, and then mammals. This I have told you. And in invertebrates I have told you those who are not having backbone and they having wings like insects. These all things we have discussed in previous video. So students, now again we are going to discuss further some new topics related to this chapter only. Now you can see here on board I have written some words. First word is habitat. First word is habitat. Now I hope that you are now familiar with this word. Why I am saying so? Because habitat is the word that we have already discussed in previous video. Previous video means previous video of chapter number 6. Means there I have explained you the meaning of habitat, natural habitat. And what is its meaning? The place where living beings actually belongs. The place where living beings actually belongs are called the habitat of that person. जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, suppose I have birth of this place Haldwani, so my natural habitat is the weather of Haldwani only. Similarly, जो एनिमल्स जहाँ के होते हैं, जहाँ उनकी बर्थ होती है, वैसा ही उनका नेचर होता है. एज आई हैव एक्सप्लेन फॉर प्लांट्स, डेजर्ट के प्लांट्स अलग होते हैं, माउंटेन के प्लांट्स अलग होते हैं, तो दैट इज देयर नेचुरल हैबिटेट. So what is the meaning of habitat? Habitat means the place where that living being belongs. Okay. After that you can see one word is written here and it is extinct. What is written? Extinct. Now kindly understand it carefully. The meaning of extinct. Extinct means, देखिए जो एनिमल्स हैं, अभी देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में हैं और वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, कैट, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. ये सब आपको बहुत ही इजीली अपनी सराउंडिंग में अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, इनको आप बहुत इजीली देख सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट आई एम टेलिंग यू, जो हमारी सराउंडिंग में एनिमल्स हैं, देखिए उनकी भी अपनी कैटेगरी है. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही इजीली हम देख पाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके चांसेस ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें अभी नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो हम उन्हें फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे, या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो उन्हें नहीं देख पाएगी. और कुछ एनिमल्स ऑलरेडी ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, जिनकी स्पीशीज कोई अभी अर्थ में अवेलेबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स. समझ में आई बात? अभी हम डायनासोर्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमने डायनासोर्स के बारे में सुना है, डायनासोर्स के हमने पिक्चर्स देखे हैं. वो कभी थे, एट प्रेजेंट नहीं है, पर वो अर्थ में थे. तो ये क्या हुआ? ऐसी स्पीशीज जो कभी थी पर अब प्रेजेंट में बिल्कुल फिनिश हो चुकी हैं, ऐसी स्पीशीज जो कभी थी, जो पास्ट में थी, पर अभी प्रेजेंट में उनकी उस स्पीशीज का कोई भी एनिमल नहीं बचा है, such type of animals comes under the category of extinct animals. ऐसे एनिमल्स जिनकी स्पीशीज का कोई भी एनिमल नहीं बचा, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ओके. और ऐसे एनिमल्स जो अभी हैं तो सही,
लेकिन अगर हमने टाइम पे उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करा, अगर हमने टाइम पे उन्हें वो प्रोटेक्शन नहीं दी जिससे कि उनकी लाइफ बचाई जा सके, तो फ्यूचर में वो एनिमल्स फिनिश हो सकते हैं। फ्यूचर में उन एनिमल्स की स्पीशीज जो है हमारी बिल्कुल फिनिश हो सकती हैं। तो ऐसे एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज किस में आता है? एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो देखिए आज के लिए आपके जो 2 न्यू वर्ड्स हैं वो क्या है? एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड। जिसमें मैंने आपको क्या बताया? एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो पास्ट में थे लेकिन प्रेजेंट में उस स्पीशीज का अब कोई भी एनिमल नहीं बचा, ना हम उन्हें कहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ उनके बारे में सुन सकते हैं कि पास्ट में वो कैसे थे और उनकी फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जो प्रेजेंट में तो हैं लेकिन वो फ्यूचर में रहें, इसके लिए हमें उन्हें कुछ प्रोटेक्शन देनी है। मींस ऐसे एनिमल्स जिनकी स्पीशीज अभी है तो सही लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जा रही है, तो हमें उनकी स्पीशीज को कम होने से बचाना है और हमें ये करना है, ये कोशिश करनी है कि फ्यूचर में भी ये एनिमल्स हमारे अर्थ में रहें। तो जो एनिमल्स इस लिस्ट में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे आपने देखा होगा कई सारे हमारे ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चलाए जाते हैं बेटा, जिनमें कि हम स्पेशली एनिमल्स की केयर करते हैं और ऐसे एनिमल्स की ज्यादा इनको स्पेशली एक अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है जिनका धीरे धीरे टाइम के साथ जिनका नंबर कम होता जा रहा है, जिन्हें हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना क्या होगा? अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, इफ वी विल नॉट प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज इन टाइम, देन दे विल आल्सो दे मे कम अंडर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो टाइम के साथ वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या समझ गए? हम यहाँ से ये समझ गए कि जो एनिमल्स अभी हमारे अर्थ पे नहीं है पर कभी थे पास्ट में, लाइक डायनासोर्स, डोडो, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर आते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जो हमारे प्रेजेंट में हैं लेकिन फ्यूचर में उनके खतरा है, उनमें डेंजर है कि वो टाइम के साथ में भी फिनिश हो सकते हैं, तो ऐसे स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा व्हाइट टाइगर, एलिफेंट, एलिफेंट की भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो अब हमें इजीली नहीं मिल पाती, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर। ओके, नाउ बेटा this chapter is totally depend upon adaptation of animals, as I have already told you, and this also suggests the name of the chapter. ठीक है कि ये चैप्टर जैसे हमने प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से इस चैप्टर में हमें एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। Now you can see I have written something adaptation in animals. ठीक है, अब एनिमल्स में अडेप्टेशन होता है लेकिन जैसे आपने देखा था प्लांट्स में अडेप्टेशन के लिए भी अलग अलग कैटेगरी थी। सेम वे फॉर अडेप्टेशन इन एनिमल्स आल्सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर अडेप्टेशन इन एनिमल्स आल्सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन प्लांट का थोड़ा सा सिंपल था। प्लांट का क्यों सिंपल था? क्योंकि प्लांट हमारे जो है ग्रो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द एरिया, हमने उसे सिंपली अडेप्टेशन में बांट दिया था। लेकिन अभी क्या है? एनिमल्स है। एनिमल्स जो है ये ऐसे लिविंग बीइंग है जो मूव भी करते हैं, जो ईट भी करते हैं, ओके, जो माइग्रेट भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, ये किसी को खाते हैं, कोई इनको खाता है, राइट। तो इन सारे बेसिस पर हम एनिमल्स की कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि वो किस तरीके का अडेप्टेशन करेंगे। ठीक है, प्लांट्स में तो क्या था, हमने कह दिया माउंटेन वाले प्लांट जो माउंटेन में लगे हैं, प्लेन वाले प्लांट्स जो प्लेन्स में लगे हैं, ये थोड़ा सिंपल था। लेकिन एनिमल्स के लिए क्या है बेटा? एनिमल्स की जो हमारी अडेप्टेशन है वो डिफरेंट टाइप्स की है, अलग अलग बेसिस पर है। जैसे हम एनिमल्स को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं कि वो किस तरीके का फूड खाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एनिमल्स को इजी वे में इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि वो किस तरीके का फूड खाते हैं।
फिर हम एनिमल्स को इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं कि वो कैसे चलते हैं। फिर हम एनिमल्स को इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं कि वो कोल्ड प्लेस के एनिमल्स हैं कि हॉट प्लेस में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो इसी तरीके से अडप्टेशन एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एज कंपेयर टू प्लांट्स अडप्टेशन की वैरायटी ज्यादा है एनिमल्स में। ओके, बट नो नीड टू वरी, इट इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो नाउ बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट अडप्टेशन स्टडी रिलेटेड टू एनिमल्स फूड हैबिट। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अडप्टेशन इन एनिमल्स, उसमें हम जो सबसे पहली कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड हैबिट। तो जो हम आज पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, हम वो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, कि किस तरीके के एनिमल्स कैसा फूड खाते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हम एनिमल्स की कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, मे बी यू हैव heard these names earlier also, they are so easy, सुने हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं then also there is no problem, I am going to start from zero, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी, so no need to worry। देख लीजिए, by food habits मैंने क्या लिखा है, food habits के अकॉर्डिंग खाना खाने के तरीके से हम एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फूड एनिमल्स हमारे खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें 5 टाइप्स में डिवाइड करा है। ओके, जैसे नंबर 1 herbivores, नंबर 1 इज herbivores, नंबर 2 इज carnivores, नंबर 2 इज carnivores, then number 3 is scavengers, number 3 is scavengers, number 4 is omnivores, number 4 is omnivores, and number 5 is parasites, number 5 is parasites। Now see beta, I have told you the categories जो food habits के हिसाब से हम animals को 5 categories में divide करते हैं। मैंने आपको उनके name बताए हैं अभी से, क्या क्या होते हैं, herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites। फिर से एक बार मेरे साथ रिसाइट करेंगे, herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites। यस, अब ये क्या है, अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फूड हैबिट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट herbivores। सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे, herbivores की स्टडी करेंगे। अब देखिए बेटा, herbivores क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, हर्बी से हमारा आते हैं हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स घास फूस। ओके, हर्ब्स मीन्स घास फूस, आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर्ब्स इज रिलेटेड टू प्लांट्स, हर्ब्स इज रिलेटेड टू प्लांट्स, एंड बोर्स मीन्स जो खाते हैं। इट मीन्स दैट हर्बीवोर्स से हमें क्या समझ में आ गया, हर्बीवोर्स से हमें ये समझ में आ गया, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं। हर्बी मीन्स हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स प्लांट्स, ऐसे याद रख लीजिए, हर्बी मीन्स हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स प्लांट्स, वोर्स मीन्स खाना। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं हर्बीवोर्स में। अब थोड़ा सा अपना माइंड चलाइए और सोचिए सराउंडिंग में आपने ऐसे कौन से एनिमल्स देखे हैं जो प्लांट्स खाते हैं, या अगर जनरल लैंग्वेज में आपकी कहूं तो घास फूस खाते हैं। जस्ट थिंक ओवर इट, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स। द मोस्ट कॉमन इज काउ। अगर आपने अपनी सराउंडिंग में ध्यान दिया होगा तो काउ अगर कभी आपने देखा होगा, जब वो घूम रही होती है तो वो यूजुअली अगर उसे कोई ग्रीन ट्री दिखे तो वो क्या करती है, उस ट्री के लीव्स को खाना शुरू कर देती है। एम आई राइट? यस। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने देखा है, आपके घर में काऊ है, और अगर नहीं है तो सराउंडिंग में किसी नेबरहुड में होगी, तो आप इस चीज का अब से ध्यान दीजिएगा कि जो वो काऊ को फूड देते हैं खाने के लिए, यूजुअली उसमें क्या होते हैं, उसमें बेटा ग्रास होती है, हर्ब्स होते हैं, ट्रीज के लीव्स होते हैं, इसी तरीके की चीजें काऊ को खाने के लिए दी जाती हैं।
क्यों? बिकॉज काउ कम्स अंडर हर्बीवोर्स। अब और एग्जाम्पल ऐसे अगर हम सोचे वो कौन कौन है जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं, तो देख लीजिए जेब्रा, कैमल, मेनी मोर आर देयर, बहुत सारे हैं। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू शो पिक्चर ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स। आप अपने पेरेंट्स से कहिए बेटा वो आपको खुद से फोन में सर्च करके हर्बीवोर एनिमल्स के फोटोज दिखाएंगे, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। हर्बीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स, ग्रास, लीव्स ऐसी चीजें खाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल काउ, जेब्रा, कैमल। ओके, क्लियर हो गया? ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। देखिए कितना इजी था, हर्बीवोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी इज कार्निवोर्स। क्या है? कार्निवोर्स। अब देखिए जब हमने हर्बीवोर्स में सिर्फ उनकी बात करी जो ग्रास या प्लांट्स खाते हैं, तो कार्निवोर्स में हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो फ्लैश खाते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फ्लैश मीन्स मांस, फ्लैश मीन्स मांस, जिसे हम अगर आपने हिंदी में सुना होगा बेटा तो हम कहते हैं मांसाहारी। सुना है? मांसाहारी मीन्स कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। कार्नी मीन्स फ्लैश, वोर्स मीन्स खाने वाले। तो कार्निवोर्स क्या हो गए? कार्निवोर्स आर सच एनिमल्स दोज हु ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, कार्निवोर्स हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का ह्यूमन बींग से कुछ भी कह दीजिए आप, फ्लैश खाते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखिए बहुत ही कॉमन है, लायन, टाइगर। अब आपको लायन टाइगर याद रखना है। लायन है, टाइगर है, ये क्या है? ये है कार्निवोर्स। जब आप ये याद रखेंगे कि लायन, टाइगर कम्स अंडर कार्निवोर्स, तो आपको खुद से याद रहेगा कि कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे का फ्लैश खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? लायन, टाइगर, वुल्फ। ओके, वुल्फ इज ऑल्सो देयर। अब अगेन आई एम टेलिंग यू सेम थिंग दैट यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स टू शो यू पिक्चर्स ऑफ कार्निवोर्स एनिमल्स। देखिए नेम तो मैं आपको यहाँ पे कितने ही बता दूंगी बेटा, लेकिन यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू सी दैट पिक्चर। So you can ask to your parents to show you a picture of some carnivore animals. Then you will get easy idea. चीजें बेटर समझ में आएंगी। ओके, तो क्लियर हो गया? कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड में, जो है स्कैवेंजर्स। जो क्या है? स्कैवेंजर्स। देखिए कार्निवोर्स तो ऐसे हैं जो फ्लैश खाते हैं, लेकिन स्कैवेंजर्स ऐसे हैं जो क्या खाते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज नॉट न्यू फॉर यू। व्हाई आई एम सेइंग सो दैट दिस वर्ड इज नॉट न्यू फॉर यू? बिकॉज इन previous chapter the same word I have explained you, dead and decaying, and there I have given you example of such plants जो dead and decaying वाले एरिया में डेवलप करते हैं खुद को। ऐसे कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स दिए थे। यस, तो अभी एनिमल्स का भी क्या है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ही खाते हैं। डेड एंड डिकेइंग मीन्स द सेम थिंग, सड़ा गला। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हाइना। हाइना एंड वल्चर। हाइना एंड वल्चर। ओके, हाइना को हम हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं। Okay, let me check. Yes, hyena is also called the lakadbagga in Hindi. So you can again ask to your parents about this hyena, and you can see some pictures, digital pictures. You will get better idea. Okay? आपको क्या करना है? Don't use mobile phones by yourself. अपने आप आपने कुछ नहीं करना है. You have to ask to your parents that kindly show us some pictures of herbivores,
some picture of carnivores, some picture of scavengers, and why I am saying so that you can get better idea. Okay, तो स्कैवेंजर्स क्लियर हो गया, ऐसे एनिमल्स जो हमारे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. एग्जांपल इज हाइना एंड वल्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. अब देखिए, हमें हर्बीवोर्स पता चल गया, हमें कार्निवोर्स पता चल गया. हर्बीवोर्स जो सिर्फ ग्रास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं. ओके, लेकिन ओमनीवोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. ओमनीवोर्स क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का. मीन्स ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो हमारे हर्बीवोर्स की तरह भी होते हैं और कार्निवोर्स की तरह भी होते हैं. मीन्स वो ग्रास तो खाते हैं लेकिन वो फ्लैश भी खाते हैं, और वो फ्लैश तो खाते हैं लेकिन वो ग्रास भी खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? ओमनीवोर्स. किसके अंदर रखते हैं? ओमनीवोर्स. Omnivores are the animals those who eat grass as well as flesh. ऐसे एनिमल्स जो हमारी ग्रास भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, वो हमारे ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज, आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाई आई एम सेइंग सो. सी, ह्यूमन बीइंग्स. Human beings are the most common example of omnivores. अब आप सोचेंगे कि मैम ह्यूमन बीइंग्स क्यों कह रही हैं, हम तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो जनरली हम उसमें ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं. ओके, इसलिए अब देखिए मैंने क्या कहा? ओमनीवोर्स. और एग्जाम्पल किसका दिया? ह्यूमन बीइंग्स का. क्यों दिया? अब आपने देखा होगा हमारी सराउंडिंग में, हम ही लोगों में, एक फैमिली में ही कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं. कुछ लोग सिर्फ वेजिटेबल्स वाला फूड खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स के साथ चिकन, मीट, ये सारी चीजें पसंद करते हैं. तो देखिए क्या हुआ, ये वही तो हुए ना, ये वही कैटेगरी तो हो गई जिसमें कि वो वेज खा रहे हैं. वेज मीन्स ऐसी चीजें जो हमें प्लांट्स के थ्रू अवेलेबल है, और नॉन वेज खा रहे हैं. नॉन वेज मीन्स ऐसी चीजें जो हमें एनिमल्स, दूसरे का फ्लैश ही तो है वो चीजें हमें दूसरे एनिमल्स से अवेलेबल हो रही है. तो ऐसे एनिमल्स जो हमारे फ्लैश भी खाते हैं और ग्रास भी खाते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स. एंड द एग्जांपल इज, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग, एंड द रेस्ट यू कैन सी मंकी, बियर. मंकी, बियर, भालू, these all comes under the category of omnivores. इन्हें जो available हुआ they can eat that in better way. Okay, now come in the last category, that is parasites. That is parasites. अब देखिए parasites क्या हैं. पैरासाइट्स हमारे, पैरासाइट माने क्या होता है? पहले पैरासाइट मतलब ऐसी कोई चीज जो हम पे रह के हम ही से फूड ले लेगी. पैरासाइट मीन्स जो है तो कोई और, लेकिन वो आप में रहेगा भी, फूड भी आपका ही बनाया खाएगा. दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स. ओके, पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो आपसे ही अपना, आपसे मीन्स फ्रॉम एनिमल्स ओनली, वो जिस एनिमल में आ जाए पैरासाइट्स, वहां क्या होता है, वहां पे वो उसी एनिमल से, उसी का, वो अपने लिए फूड अलग से प्रिपेयर नहीं करते पैरासाइट्स. वो जो एनिमल का फूड होता है, जो एनिमल का ब्लड होता है, उसी को खा लेते हैं. तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स. ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग काइंडली सी. अब देखिए LICE, लीस. लीस आपने सुना होगा. व्हाट इज लीस? लीस इज अ टाइप ऑफ स्मॉल इंसेक्ट.
जिसे आपने देखा होगा इफ यू डोंट वॉश योर हेयर प्रॉपरली तो वो आपके हेड में हो जाते हैं। तो कोई फूड के लिए स्पेशल एफर्ट्स नहीं करते। ऐसे एनिमल्स जो अपने आप से फूड के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करते, बल्कि जिस एनिमल पे हैं उसी एनिमल से उसका ब्लड लेके अपना फूड पूरा कर लेते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव सीन एग्जांपल ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म जैसे जो हमारे इंटेस्टाइन में बेटा वर्म्स हो जाते हैं, जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, दैट इज ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स। क्या होता है, वो अलग से थोड़ी अपने लिए कोई फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो हम फूड खा रहे होते हैं उसी फूड से जो भी न्यूट्रिशन आता है वो ले लेते हैं। तो these such type of animals, those who feed on the food of other animals or on the blood of other animals, comes under the category of parasites. Now for better understanding, you can see the pictures given in your book also. Okay, so students, today here we have completed our adaptation animals by food habit. फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हमारे एनिमल्स का कैसा अडेप्टेशन होता है वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्या क्या कहा कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू द फूड्स वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू 5 कैटेगरीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। Herbivores are the animals those who feeds on grass. Carnivore only grass, plants or trees. Carnivores are the animals those who feed only on flesh. Omnivores are the animals those who feed on grass as well as flesh. Scavengers are the animals those who feed on dead and decaying material. And parasites are the animals those who feed on the blood of the other animal. So students, I hope that now you are able to understand that how we can divide the animals according to their food habits. Kindly, for better understanding, take help of your parents and say them to show the pictures of such animals, okay? And read these topics from your science book. It will become quite easy for you to understand the things, okay? Thank you and have a nice day ahead.